Hello, dear children. How are you all? Yes. Hope that everyone is fit and fine, happy. Hmm? So, let's discuss our subject employability skills. Till now, we learn communication skills in which the subtopics verbal communication, non-verbal communication. Now, today, our topic is third one, that is visual communication. Visual means दृश्य, जो भी हम देखते हैं दैट इज विजुअल. ओके, सो विजुअल कम्युनिकेशन. नाउ इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन pictures and images are used through which the message is interchanged. Okay, visual communication proves to be effective since it involves interchanging messages only through images or pictures, and therefore you need not to know any particular language for understanding. इस टाइप के मैसेजेस समझने के लिए कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है. नो नीड ऑफ मराठी और इंग्लिश और एक्सेट्रा और उर्दू एंड ऑल दिस. सो जस्ट थ्रू पिक्चर और just through image the message is interchanged. Okay, so it is simple and remains consistent across different places. ये जो मैसेजेस है ये अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं. सेम मैसेज, ओके, सेम मैसेजेस अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनका मीनिंग एवरीवेयर इन एवरी लैंग्वेज इट मीन्स सेम मीनिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, see the examples of visual communication. Visual communication, exchanging information through images. So if there is road construction is going on, so what happened there? There is a peak like this on iron plate. There is strips in yellow and white color, and it is put on the middle side of the road, or they put blocks, yellow red blocks. See here it is picture, or like this picture, the man is doing some work. So it means under construction. What it means? It means under construction. The construction of the road is going on. No one is there to stand to say that don't go from this side, here the construction work is going on and all this. Only they put plastic blocks there in between the road, or they put the iron strips, where they painted yellow and white strips. Okay, so blocks are there. The construction agency put like this. So the people going from the road, they understand that no need to go from this side, the construction is going, or it is danger, or what some, they change their way for going, for journey. Okay, so this is the symbol of under construction. One another symbol they show here, no pets is allowed. No pets is allowed, the peak of pet in circle and the cross line. So no pets is allowed. यहाँ पर मीन्स पेट मीन्स पाळीव प्राणी. पाळीव प्राणी जिन्हें हम क्या बोलते हैं उसको, पालतू कुत्ते, या फिर जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, ऐसे एनिमल्स, पेट एनिमल्स हो, तो वो अलाउड नहीं है. द सिग्नल इज लाइक दैट. ओके, अनदर सिग्नल, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं. ट्रैफिक सिग्नल्स ऑल ओवर in India same, in any language, or all over world may also same. So no parking, circle, P cross, P for parking, but it cross, so no parking zone. Then no entry, circle, and then it is crossed by red line, red circle, red cross, red
line, that is no entry. Then danger warning, see the symbol is like this. हमें कहीं पर भी दिखता है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का पोल है या फिर कहीं पर कुछ है जहाँ पर डेंजर हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन की स्केलेटन हेड का जो होता है वो लगाया हुआ रहता है. देन इट इज़ डेंजर सिग्नल. ओके. और इन ट्रायंगल देर इज the sign like this. Then radiation biohazard warning, the symbols are like this. जहाँ पर रेडिएशन है या फिर बायोहैज़ार्ड वार्निंग है ना, जहाँ पर जाना मना है या फिर ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक दिस. सो द सिम्बॉल्स आर लाइक दिस. देन अंडर CCTV सर्विलेंस, व्हाट, जहाँ पर CCTV कैमरा लगाए हुए रहते हैं वहाँ पर ये ऐसे स्क्वेयर में दिस टाइप ऑफ पिक्चर इज देयर, इमेज इज देयर. नो मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड. सो इन सर्कल मोबाइल को क्रॉस कर दिया है, सो इट इज़ नॉट अलाउड in exam hall or in anywhere, somewhere the pictures is images is are like this. So this type of images or pictures are used in visual communication. Okay, it is known as visual communication. So here are some activities. You go through it, you try to do. I will share these pages with you. So आपको भी कुछ ना कुछ इस बारे में, अभी आप 10th में हो, कुछ ना कुछ तो ज्ञान आपको है, आपने भी देखा है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और ड्यूरिंग योर डे टू डे लाइफ. यू एक्सपीरियंस समवेयर देयर आर पिक्स, देयर आर इमेजेस विच गिव्स सम इम्पॉर्टेंट मैसेज टू एवरीवन. देयर इज़ नो नीड ऑफ लैंग्वेज फॉर विजुअल कम्युनिकेशन. हमें देख के ही समझ लेना चाहिए, इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है ना. सपोज अगर हम रोड से जा रहे हैं और नज़दीक में अगर कोई स्कूल है, तो एक ऐसे प्लेट पे, सर्कुलर प्लेट पे स्कूल में जाती हुई बच्ची का पिक होता है ना, कि नियर बाय स्कूल. सो द स्पीड इज मॉडरेट और गो स्लो, है ना, इस टाइप का वो मैसेज होता है. सो देन चेक आउट your progress. Multiple choice questions are here, some depending on this topic, so try to solve. Okay, read the questions carefully and circle the letter A, B, C or D that best answer the question. See, which of these is a positive facial expression? Facial expression, what type of communication बताइए? Non-verbal communication. Facial expression is non-verbal communication. Which of is a positive facial expression? Frowning while concentrating. Okay, means जब हम किसी को ध्यान दे रहे हैं तो नापसंदी, फ्रॉनिंग मीन्स पसंद नहीं आया, ऐसे एक्सप्रेशन अगर हम देते हैं तो क्या होगा? इट्स नॉट गुड. ओके, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज गुड. वाइल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज अ गुड वे टू कम्युनिकेट. देन स्माइलिंग कंटिन्यूसली हंसना, कोई अगर बोल रहा है तो इट इज़ नॉट गुड. रोलिंग अप योर आइज, आंखें घुमाना, इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो द आंसर इज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट. विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? दैट इज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज अ गुड positive facial expression. Then second one, what does an upright is straight, what does an upright body posture convey or show? बॉडी पोस्चर हमारा कैसा होना चाहिए? प्राइड, गर्विष्ठ सारखं असायला हवं का? की प्रोफेशनलिझम, तुमची व्यावसायिकता खूप दाखवणारं असायला हवं, की कॉन्फिडन्स असावं, की ह्युमिलिटी दर्शवणारं असावं? काय दाखवतं? स्ट्रेट उभं राहणं तुमचं काय दर्शवतं? यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट शोज व्हाट? कॉन्फिडेंस. बताया था आपको, है ना, इसके पहले पीरियड में. स्टैंडिंग स्ट्रेट, द बॉडी पोस्चर कन्वेज कॉन्फिडेंस, राइट. देन थर्ड वन, विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क? क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं सकते तो आप करेक्ट आंसर को चूज़ नहीं कर सकते, है ना. इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए. एक बार में समझ आता है तो भी उसे दोबारा पढ़िए. कभी कभी हो सकता है कि हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं और कुछ तो ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में.
सो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है तो एक बार फिर पढ़िए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। सो व्हाट इज क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नॉट, देखिए नॉट को उन्होंने बोल्ड लेटर में लिखा है ना, विच ऑफ दीज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, पॉकेट में हाथ रखना अच्छा है क्या। टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, एक मध्यम गति से बात करना अच्छा है क्या। या फिर स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीटिंग स्ट्रेट अच्छा है क्या। टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन, ये अच्छा है क्या। देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी कही है। टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, मध्यम गति से बात करना चाहिए। देन सीटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठना चाहिए। टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन, थोड़ा सा हमारे सर को हमने झुका हुआ रखना चाहिए, है ना, कि हम सुन रहे हैं भाई, है ना, एकदम से ऐसे सीधा एकदम खींचा हुआ सर नहीं रखना चाहिए, तो लिटिल बिट टिल्ट होना चाहिए। तो ये बातें अच्छी है, बट द नॉट, नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट व्हाइल टॉकिंग, पॉकेट में हाथ रखकर बात करना अच्छा है क्या, नहीं, तो इसे हमको टिक करना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है कम्युनिकेशन के लिए। देखिए आपको बताया था मैंने परसेंटेज एक पीरियड में, कि कम्युनिकेशन के परसेंटेज है कि हम कितना परसेंट क्या क्या यूज़ करते हैं। 50% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, 20% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स एक्सेट्रा, 5% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉज etc, 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड। बताए थे, इसमें से कौन सा सही है बताइए। देखिए ये जो हुआ था टॉपिक, आपको मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज लाइक दैट। ओके, 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू, व्हाट आई एम गिविंग वीडियो लेसन्स टू यू, सो यू लिसन इट केयरफुली, यू लर्न इट केयरफुली। ओके, एक बार में नहीं समझा है तो 2 बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन इज पुट अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट द एक्शन बिलो विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोबारा पढ़ना है कि हमें किस चीज़ को टिक करना है। देखिए, पुट अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट द एक्शन बिलो विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गलत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं उनको हमें क्रॉस करना है। लाफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, इज इट ओके, नो, क्रॉस कर दीजिए। स्क्रैचिंग हेड, तुमको हेड को स्क्रैच करना है, नो, है ना, सर को खुजलाना है क्या, नहीं। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, बात करते समय दोस्त के साथ हंसना है। स्माइली फेस तो हमें रखना है ना, फेस स्माइली रखना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस अभी नहीं करेंगे, फिर आगे के देखेंगे, सोच कर करेंगे। ठीक है, नॉडिंग व्हेन यू एग्री विथ समथिंग, यस, हमें नॉड तो करना है। स्टैंडिंग स्ट्रेट भी रखना है, स्टैंड स्ट्रेट बताया था। यॉनिंग व्हाइल लिसनिंग, तुम्हें यॉन करना है लिसन करते समय, मराठीमध्ये त्याला जांभळी देणे असं म्हणतात। नो, इट्स नॉट लुक गुड, इट्स नॉट गुड। सिटिंग स्ट्रेट, येस, यू शुड सिट स्ट्रेट। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट व्हाइल स्पीकिंग, इज इट ऑल्सो राइट, इट इज़ ऑल्सो राइट। बीटिंग नेल्स इज नॉट गुड, नाखून खाना है, नहीं। फर्म हैंडशेक करना है। क्लिंचिंग जॉज, है ना, हमें जॉज को क्लिंच करना है, नो। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको उससे कहीं और देखना है क्या, नहीं, है ना, उसकी तरफ ही देखना है। उससे आई कांटेक्ट बनाए रखना है, उसकी तरफ देखना है, वो जो कह रहा है उसके अलावा हमें कहीं और नहीं देखते रहना है। इट शोज इग्नोरेंस, बताया था ना आपको। देन इंटेंस स्टेयर,
एक जैसा उसकी तरफ, मतलब उसको टकटकी लगा के देखना, जो बोलते हैं कि एक जैसा देखते रहना, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. सो इतने सारे क्रॉस आ गए देखिए इसमें, है ना, क्रॉस मार्क आ गए अगेंस्ट द एक्शन बिलो विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, तो ये स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, ये तो ठीक है, हमें स्माइली फेस तो रखना ही है दोस्त के साथ बात करते समय, है ना. ओके, तो इट इज़ ओके. फिर से हमने एक बार पढ़ लिया उसको. सो दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मे कम ऑन द टॉपिक वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन. ये तीनों टॉपिक पर डिपेंड क्वेश्चंस थे, तो ये हमें आ सकते हैं, है ना, हमारे पेपर में. ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे. केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि दोबारा पढ़ना है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं उनको भी दोबारा पढ़ना है, फिर करेक्ट को चूज करना है. ओके, सो this is about visual communication and the all three types of communication, objective type of questions. Okay, so the next session number 4 is communication cycle and importance of feedback. So आपको communication cycle में मैंने first इसमें ही बताया था कि there is a cycle in which sender, receiver and feedback, हाँ, three types, three important elements are there: sender, receiver and feedback. Now here it is also detail is given. So communication cycle and importance of feedback is very much important in communication. Okay, without feedback it is not understand that whether the communication is going to right direction or it is on right track or what, huh? So feedback is an important part of communication cycle. Means फीडबॅक इज प्रतिसाद. फीडबॅकला मराठीमध्ये काय म्हणाल? प्रतिसाद. तुम्ही जसा प्रतिसाद देता त्यावरूनच कळेल ना की कम्युनिकेशन कसं चाललेलं आहे. सो फीडबॅक इज एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सायकल. फॉर इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन इट इज इम्पॉर्टंट दॅट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस. हाँ, सेंडर जो भी मैसेज देता है ना, तो रिसीवर ने उसको एक्नॉलेजमेंट तो देना है. It is very important. While a sender sends information, the receiver provides feedback on the received message. सेंडर ने जो भी मैसेज दिया है तो रिसीवर उसको मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा और कुछ तो बात कहेगा, है ना, कुछ तो बात कहेगा, कुछ तो मैसेज रिप्लाई में देगा. हाँ, दैट इज फीडबैक. ठीक है. ट्रांसलेटेड टू द वर्क एनवायरमेंट, व्हेन यू ऑब्जर्व समवन परफॉर्म देयर वर्क and then communicate with them to help improve their performance. सपोज आपने अगर कोई असाइनमेंट करके लाया है, आप हमको दिखा रहे हैं, है ना, तो हमें तो आपको फीडबैक देना है. येस, इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ अप टू द मार्क, इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, इट इज़ एवरेज. दिस टाइप ऑफ वर्ड्स और दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ नीडफुल. हाँ, इट इज़ नेसेसरी एंड इट इज़ नोन एज फीडबैक. मीन्स कोई भी बात होती है तो वो बात को समझने के बाद जो भी आंसर आता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है, दैट इट इज़ नोन एज फीडबैक. ओके, सो communicate with them. Okay, just a minute. Translated to the work environment, when you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performance, you are giving feedback. Feedback can be positive or negative. A good feedback is always, अच्छा फीडबैक कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है ना. हाँ, देन हेल्पफुल होता है, देन काइंड होता है. अ गुड फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड काइंड. इस टाइप के फीडबैक होना चाहिए. जैसे हम लोग क्लास में बोलते हैं, अरे वाह, वेरी गुड, सो नाइस डियर स्टूडेंट्स. ये फीडबैक है ना. अगर बच्चे आंसर देते हैं, कोई आंसर देता है तो हम क्या बोलते हैं? येस, गुड, इट इज़ करेक्ट. स्पेसिफिक, हेल्पफुल, उस बच्चे के लिए तो वो हेल्पफुल हो गया ना, वो इनकरेज हो गया बच्चा और ज़्यादा पढ़ने के लिए, और ज़्यादा आंसर देने के लिए हेल्पफुल हो गया. देन काइंड, है ना, उसे अच्छा लगता है. काइंड होने चाहिए फीडबैक. वर्ड्स आर सॉफ्ट होने चाहिए.
वैसे नहीं कि हम लोग हम एरोगेंटली बात करें फीडबैक देने के लिए. हाँ, इट इज़ नॉट गुड. ओके, सो बट देर आर टाइप्स ऑफ फीडबैक. उस टाइप के भी फीडबैक होते हैं, हमेशा ऐसा ही नहीं रहेंगे. बट गुड फीडबैक इज ऑलवेज लाइक दिस, specific, helpful and kind. Here communication cycle is given. So see, sender is going to communicate to receiver. Okay, sender is communicating to receiver, receiver is giving feedback to sender, again sender is communicating to receiver, then receiver is giving feedback to sender. This is the cycle. फॉर एग्जाम्पल फ़ोन पर बात करते हैं, है ना, यहाँ से बात चालू हो गई, है ना, कम्युनिकेशन चालू हो गया, रिसीवर ने लिया, देन रिसीवर गिविंग आंसर, देन ऑन दैट आंसर अगेन सेंडर इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, द कम्युनिकेशन इज गोइंग लाइक दिस. ड्यूरिंग अवर टीचिंग पीरियड इज ऑल्सो सेम. टीचर इज टीचिंग, कम्युनिकेट मीन्स टीचिंग, रिसीवर you are trying to understand and you are giving feedback to the teacher. Again teacher is giving message to you, you are trying to understand, giving feedback to teacher means sender. So teaching learning process is like this. Overall the communication process is like this, and this is the communication cycle. Okay. So types of feedback are also positive feedback, negative feedback, no feedback. Okay, there is positive feedback, negative feedback, no feedback. Positive feedback, I notice you finished the work perfectly, great job. This is positive feedback. Yes, very good, I noticed that you did your work perfectly, great job, good job, is the positive feedback. Another example, I really appreciate you taking that call. Can you please also share the details? अच्छा हो गया आपने वो कॉल उठा लिया, क्या हुआ था बताओ तो, क्या कह रहे थे वो, क्या हुआ था वो कॉल में. पॉजिटिव फीडबैक. इधर ग्रीन सिग्नल दिखा है देखो, है ना. सो इट इज पॉजिटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक, you keep forgetting to smile at the hotel guest when you talk to them. This is employability skill my dear children. हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मीन्स यहाँ पर हर तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. ये एग्जाम्पल देखिए कहाँ का है, इट इज़ इन होटल. सो द होटल मैनेजर में बी और द होटल ऑफिसर्स इज आस्किंग टू their representative what or receptionist, you keep forgetting to smile at the hotel guest when you talk to them. क्या कह रहे हैं कि होटल के जो गेस्ट आए थे उनके साथ आप स्माइल करना भूल गए. टॉकिंग विद स्माइल इज अ गुड. हाँ, सो ये क्या कह रहे, इट इज़ नेगेटिव फीडबैक. इट इज़ नेगेटिव फीडबैक. बराबर है कि अगर उन्होंने वैसे नहीं किया होगा तो वो वैसा फीडबैक दे रहे हैं. जैसा हम करेंगे वैसा ही फीडबैक मिलेगा ना. हाँ, अगर मैं आपको कुछ अच्छा बताऊँ तो आप बोलेंगे कि यस मैडम इट इज़ गुड. अगर मैं अच्छा नहीं बताऊँ तो आप बोलेंगे कि नो मैडम इट्स नॉट गुड. आप कुछ अच्छी चीज़ करोगे, अच्छा कुछ बिहेव करोगे तो मैं बोलूँगी यस वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी गुड. अगर आप कुछ अच्छा नहीं करोगे तो मैं क्या बोलूँगी, नो इट इज़ नॉट लुक गुड, इट्स नॉट गुड, यू आर नॉट डूइंग गुड जॉब. इट इज़ द नेगेटिव फीडबैक. सो यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई ईमेल्स, आर यू ऑलवेज सो बिजी, है ना. क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है कि आपने ईमेल का जवाब जल्दी नहीं दिया, क्या आप हमेशा इसी तरह से बिजी रहते हो. दिस इज नेगेटिव फीडबैक. ये थम्स डाउन किया है, यहाँ पर क्रॉस दिखाया है, यहाँ पर थम्स अप है, राइट है ग्रीन में, यहाँ पर रेड है, क्रॉस है, नेगेटिव फीडबैक. ओके, कभी कभी क्या होता है, नो फीडबैक. हाँ, नो फीडबैक. देयर इज फीडबैक, it may positive, it may negative, or sometimes there is no any feedback. It is also a feedback in itself which indicates disagreement of ideas. फीडबैक देना भी क्या है, एक तरह से निगेटिविटी ही है. फीडबैक नहीं देना भी एक तरह से निगेटिविटी है और डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़ है ना. तो फीडबैक देना ज़रूरी है.
मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भेज रही हूँ, है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं मिल सकते हैं, या फिर कोई जूम मीटिंग में आप सभी लोग एट ए टाइम मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भेजूँ। तो वो वीडियो लेक्चर्स पर आपको फीडबैक देना ज़रूरी है ना। आप या तो लाइक करो, है ना, आपको ज़रूरी है पढ़ना, तो आपको लाइक करना भी ज़रूरी है। अगर आप लाइक करोगे तो ही मैं आपको फिर से लेक्चर्स भेजूँगी। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मैं तो इनकरेज नहीं हो पाऊँगी ना, कि अरे मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप लाइक करते हो, आप देखते हो, मुझे व्यूज़ मिलते हैं, आप देख रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मैं इनकरेज हो जाऊँगी। इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक। कुछ बच्चे देख रहे हैं बट दे आर नॉट गिविंग एनी फीडबैक, सो आई थॉट इट इज़ डिसएग्रीमेंट, सो it's not good, or it is not like that. You should agree. If you like, you should agree. If you like, you give positive feedback. Okay, so these are the types of feedback. But somewhere what happened ki it is necessary to give out of these three any one feedback. So but if there are the positive things, you should give positive feedback. अगर आप लोग कुछ अच्छा करते हो तो हम लोग डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, है ना। और अगर आप लोग कुछ अच्छा नहीं भी करते हो तो हम टीचर्स लोग, आप लोगों ने अच्छा करना चाहिए, आपको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए हम आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक इनकरेज करता है इंसान को अच्छा करने के लिए, प्रोत्साहित करता है। सो ट्राई टू गिव ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक। ऐसा नहीं कि कुछ गलत भी चीज़ हो रही है और आप फीडबैक पॉजिटिव रखो, ये बात नहीं है। अगर आपका कुछ दोस्त गलत कर रहा है, वो स्कूल से भाग रहा है बार बार, तो आप उसको पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकते, है ना। अरे हो तू अच्छा कर, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा हाँ तू छान, मज्जा आहे तुझी, छान चाललंय बाहेर, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव फीडबैक। ओके, अच्छा को अच्छा कहना इज़ पॉजिटिव फीडबैक। और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो सॉफ्ट वर्ड में कहना चाहिए, फीडबैक तो देना चाहिए ताकि अगला जो है वो अपने को सुधार सके। फीडबैक इज नेसेसरी, ओके, टू कम ऑन राइट ट्रैक। इट इज़ इन बिहेवियर, इट इज़ इन कम्युनिकेशन, इट इज़ नेसेसरी इन everywhere. Okay, so feedback, if shared properly, can help reinforce existing strength and can increase the recipient's abilities to rectify errors. It can have long term effect in managing and achieving goals. Okay, so feedback necessary है, किस लिए, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको एनकरेज करने के लिए। ओके, सो गुड फीडबैक इज वन, दैट इज, मैंने बोला अभी आपने देखा था शॉर्ट में, है ना, गुड फीडबैक इज स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड काइंड। गुड फीडबैक इज स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड काइंड, यहाँ पर उन्होंने और उसका डिटेल में दिया है, देख लेंगे थोड़ा सा, हम लोग इतना देख लेंगे तो ये सेशन अपना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में अपन सेशन नंबर 5 लर्न करेंगे। ओके, ठीक है। सो गुड फीडबैक इज स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर उधर की बातें करके फीडबैक दे दिया, नॉट लाइक दैट, इट शुड बी स्पेसिफिक। अवॉइड जनरल कमेंट, जनरल कमेंट नहीं होने चाहिए, कमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स लेके आपको आपका स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए। ओके, ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स रादर देन जस्ट गिविंग एडवाइस। हाँ, केवल एडवाइस देना नहीं है, उसको आपको सोल्यूशन भी देना है कि ये नहीं तो ये हो सकता है, दिस इज़ द फीडबैक। हाँ, सो ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स रादर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउज द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विथ योर फीडबैक। आपके फीडबैक के साथ क्या करना चाहिए, ये जो रिसीवर है ना, उनको समज में आता है फिर, है ना। तो ऐसा नाही की केवळ फीडबॅक दे दिया, फक्त सल्ला नाही द्यायचे, सजेशन्स पण द्यायचे। हां, की तू असं कर असं नाही सांगायचं, तू हे असं कर, ओके, यू डू दिस लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। केवल हमें उनको सजेस्ट नहीं करना है, तो हमें उनको वेज भी देना है कि हाउ टू डू, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कन्वे। ओके, देन टाइमली होना चाहिए। हाँ, बीइंग प्रॉम्प्ट इज द
key since feedback loses its impact if delays for too long. फीडबैक हमें जल्दी देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने आज सुन लिया और फिर कल परसों बता दिया, अरे आप तो ऐसा कर रहे थे ना, तो वो ऐसा होना चाहिए था, या फिर अरे आपने वो जो किया ना वो तो बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं. जब भी हम सपोज अभी व्हाट्सअप पे हमें अगर कोई ये आता है, पिक आता है या कोई थॉट आता है या कुछ आता है, तो हम तुरंत उसको वेरी गुड, सुंदर, लाइक दिस, है ना, थंब दिखाते हैं. हाँ, तो हम ये कैसे तुरंत करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फीडबैक. सिम्बॉल्स देते हैं मीन्स व्हाट, पिक्स देते हैं, इट इज़ एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है ना वो. ओके, सो टाइमली होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, नम्र. ओके, हाँ, हमारे जो वर्ड्स है, हमारा जो वे टू कम्युनिकेट है, इट शुड बी पोलाइट. While it is important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language of the feedback. Means हम वो जिसको भी हम फीडबैक दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उसको अदरवाइज नहीं लगना चाहिए हमारा फीडबैक, है ना. उसने पॉजिटिव लेना चाहिए या फिर वो सेटिस्फाइड होना चाहिए. हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, है ना. अगर हम क्लास में जाते हैं या फिर कोई बच्चा हमें कोई असाइनमेंट दिखाता है, अगर उसने कुछ ऑर्डिनरी लिखा है, नॉट वेरी गुड लिखा, तो हमें उसको मैं या कोई टीचर उसको जो फीडबैक देंगे, है ना, तो वो कैसे होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, है ना. दो ही स्टूडेंट, वी आर गिविंग द फीडबैक टू स्टूडेंट, बट द टीचर्स वर्ड्स इज ऑल्सो पोलाइट. टीचर हो या कोई भी हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, फीडबैक देते समय हमारे वर्ड्स पोलाइट ही होने चाहिए, है ना. बराबर है ना, क्योंकि हम जिसको फीडबैक दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए, हाँ, उसका मन खराब नहीं होना चाहिए कि अरे कि मैंने इतने इससे किया और इन्होंने क्या बोला. नो, नॉट लाइक दिस. अगर कोई असाइनमेंट बच्चा दिखाता है, इट्स नॉट वेरी गुड, बट आप उसको कह सकते हैं कि अरे बेटा अच्छा लिखा है आपने, लेकिन अगर आप कुछ और एक दो बुक्स का रेफरेंस लेकर अगर लिखते ना, तो ये और ज़्यादा अच्छा होता. दीज आर द पोलाइट वर्ड्स. आप और ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, थोड़ी मेहनत करो. पोलाइट वर्ड. इट इज़ फीडबैक, इट इज़ लिटिल बिट निगेटिव, बट द वर्ड्स आर पोलाइट. तो रेसिपिएंट जो है वो दुखी नहीं होगा, वो नाराज़ नहीं होगा, है ना. दूसरी बात, अगर कोई ऑफिसर है, बात करते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो उनको भी इसी तरह से होना चाहिए सब कुछ, है ना, कि अरे यू कैन डू लाइक दिस. ओके, इस तरह से अगर करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. आपने अच्छा किया है, बट इफ़ यू डू लाइक दिस देन इट इज़ बेटर. सो द वर्ड्स आर ऑलवेज पोलाइट वाइल कम्युनिकेशन. सो ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, कंटिन्यू सपोर्ट चाहिए, देना है हमें. हाँ, फीडबैक शेयरिंग शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Feedback sharing is a continuous process. It's not temporary or it's short process. It is continuous process. ये continuous चलता है. After offering feedback, let's recipient know you are available for support. केवल फीडबैक देके ख़त्म हो जाता है क्या? है ना, फीडबैक देकर बात ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं. फीडबैक देने के बाद भी प्रोसेस चालू है. रेसिपिएंट को लगना चाहिए कि यू आर देयर फॉर सपोर्ट. बात तो फीडबैक से करेक्ट हो जाएगी. पॉजिटिव है तो और इनकरेज हो जाएगी, निगेटिव है तो दुरुस्त हो जाएगी, है ना. न्यूट्रल है तो भी जो भी समझ में आया मैसेज, न्यूट्रल फीडबैक से भी, तो नो फीडबैक से भी, तो भी वो करेक्शंस तो हो जाएंगे, बट इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो द रेसिपिएंट थिंक दैट यू आर कंटिन्यूअसली अवेलेबल फॉर सपोर्ट. सो ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट आल्सो. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन्होंने दिया है, तो अब तक तो वही अपन ने पढ़ा है. फिर भी एक बार अगर आप चाहते हैं तो इसको भी अपन पढ़ लेंगे और ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करेंगे. इसके ऊपर अवेलेबल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आप सॉल्व कर लेना, मैं शेयर कर दूँगी आपको वो क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी दिस पैरा. फीडबैक इज़ अ final component and one of the most important factor in the process of communication, since it is defined as the response given by the receiver to the sender. Feedback is important. It is important component between the sender and the
recipient. Let us look at certain reasons why feedback is important. See the reasons. It validates effective listening. ये इफेक्टिव लिसनिंग को दर्शाता है. द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड और रिसीव एंड दैट देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू. जब कोई बात कही जाती है तो अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम क्या समझते हैं कि येस दे आर लिसनिंग. रिस्पॉन्स इज फीडबॅक. समजलं का रे? तुम्हाला समजत आहे का रे? हो मॅडम समजले. दिस इज युअर फीडबॅक. सो आय कॅन understand that you are listening to me. If you are say nothing, then it may be question mark in front of me that you are listening or not, that you are understanding or not. So giving feedback is, it validates effective listening. अच्छे से सुन रहे हैं कि नहीं ये दर्शाता है. It motivates, it gives motivation. Feedback can motivate people to build better work relationship and continue the good work that is being appreciated. फीडबैक देने से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है. हमेशा मैं आपको फीडबैक देती हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगा. आप मुझे फीडबैक देते हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा. इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट मोटिवेट्स. गिविंग फीडबैक इज मोटिवेशन. इट इज़ ऑलवेज देयर. एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन we communicate feedback, so it is impossible not to provide one. Every time you speak to a person, हम हमेशा किसी से बात करते हुए communicate feedback. हम feedback तो देते. So it is impossible not to provide one means हमें एक को हमेशा देना ज़रूरी नहीं है ना. it is always there. हमेशा के लिए होना चाहिए. ऐसे नहीं कि एक बार दिया and फिर नहीं दिया है. It's not like that. Okay. इट बूस्ट लर्निंग के लिए हेल्प करता है. फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल. गोल पर फोकस होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. प्लान बेटर एंड डेवलप इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये किस किस के लिए हेल्प करता है? बेटर प्लान के लिए, हमारे अच्छे प्रोडक्ट डेवलप के लिए, अच्छी सर्विसेज डेवलप करने के लिए ये हमें बूस्ट करता है. इट बूस्ट लर्निंग. कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए फीडबैक बूस्ट करता है. क्या करता है उसको क्या बोलेंगे? एनकरेज करता है. इट बूस्ट लर्निंग. इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बढ़ता है. अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही, है ना. फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजंस टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस. फीडबैक से हमें क्या होता है? बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प होती है. हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हेल्प होती है बिकॉज ऑफ फीडबैक. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक. सो फॉर टुडे it is okay. So learn carefully. I will share all these pages to you from non-visual communication. Okay. We start today's topic from visual communication. Afterwards we solve all these objective type questions. Then we learn about the communication cycle. This is communication cycle. 4 elements are there: sender, communicate, receiver and feedback. Okay. Then types of feedback. 3 types of feedback. Positive feedback, negative feedback, no feedback. Okay. So good feedback is always specific, helpful and kind. Then feedback in detail. Feedback in detail means in good feedback there is it is specific, timely, polite and offering continuing support. Then importance of feedback, 5 points are there. It validates effective listening. Then it motivates. It is always there. It boosts learning and it improves performance. This is the importance of feedback. So today we stop here. We will see the next topic or next session in next period, that is बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. सो आपको तब तक के लिए इतना पढ़ के रखना है. सो टेक केयर एवरीबडी, माय डियर चिल्ड्रंस. बाय. यस, सी यू इन नेक्स्ट पीरियड.